Okay, today's topic is stress management, and this stress management topic is related to the organizational stress. We are not talking about the individual stress, we are talking about the organizational stress. We will discuss what are the causes of stress and how we cope and how we handle the stress during the workplace. So first we have to be discuss what is stress. In physics we use the two word, one is stress and another is strain. Stress कहते हैं किसी तनाव को, खिंचाव को, resistance को. Whenever we have two things and we have to be a expend, जिसको हम कहते हैं तनाव है, खिंचाव है. So what is the work stress? The work stress is a stressful situation between the two. Any one side there is a job and another side is your expectation. One side there is a demand and another side is your available resources. What do you want to be? What do you want to get? These are the difference between the demand and expectation, and the another is the resources. So is an academic definition is a condition where everyone is trying to avail the opportunity, and when they are not avail it, when they don't get fulfill the complete expectation, so they get the stressful situation when their desire is not fulfilled. And everyone has some expectations and everyone want to get some desirable outcome, which was uncertain, which is supposed to be important and less important. So we have different type of stress. The first one is the challenging stress. Everyone has a challenging task. हमारा जो task का work है, workload है, उसमें deadlines होती हैं, हमें उसको meet करना है. और चैलेंजिंग टास्क है कि डिले ना हो जाए, लेट्स ना हो जाए, ओवरकम करना है, अर्जेंसी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी एक काम आता है फिर एक और काम आ जाता है, तो ये हमारे पास इसको लेके हमारे पास एक stressful situation होती है, because we have a very less of time. Time is the key resources. Time is also our resources, and that is the source which is very scarce. Scarcity of resources, one of the most scarce resource of the whole world is the time. How to handle the time? So we have just 24 hours and we have to do a lot more thing. So this will create the too much pressure on our health also, psychologically, and the physiological stress has consequences. So number one is the challenging stress, जो deadline को beat करने के लिए, urgency के लिए, workload के लिए. Second one is hindrance. Small obstacles are there, just like that delaysm, red tapeism, internet नहीं problem कर रहा, when you want to reach somewhere there, and you have a traffic facing problem, right? When you wanted to call and you have a very poor connection. So these are the hindrances, these are the obstacles that create so stressful situation in your mind that harms you, right? जो आपके गोल को अचीव करने में हर्डल्स क्रिएट कर देते हैं. जैसे कि आप असाइनमेंट सबमिट करना चाहते हैं वर्क पे, मगर आपको इंटरनेट प्रॉब्लम है, आपका सिस्टम हैंग हो रहा है, घर में कोई नॉइज है, वर्कलोड है, ये क्या है? ये ऑब्स्टिकल्स है, हर्डल्स है. और मैंने अभी आपको जैसे डिमांड रिसोर्स के बारे में बताया कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन कैसे क्रिएट होती है. स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट होती है, एक सेकेंड, यस, stressful situation create होती है when we have a gap between the demand and expectation or the resources that we have. अब वो material resources हो, financial resources हो, या फिर time resource हो, and we want to be get most of it. We want to get the maximum utilize of that resources. अब ये जो resources हैं, इसको जब हम अचीव नहीं कर पाते, एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर पाते, तो वी हैव अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन. अब यहाँ पे कुछ पोटेंशियल सोर्सेज है हमारे पास. एक मॉडल ऑफ स्ट्रेस है. वी हैव ओके, पोटेंशियल सोर्सेस लाइक
environmental factors जैसे कि economic uncertainty are there. So we have a model of stress. These are the potential sources. The number one is an environmental factor where we work. Environmental factor में economic uncertainty होती है, कभी भी जो है वो फायर कर दिया जाएगा, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ये एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है. पॉलिटिकली अनसर्टेनिटी होती है इनसाइड एंड आउटसाइड द पॉलिटिक्स. तो कोई क्लोज हो जाए या फिर ऑफ हो जाए या कोई बैरियर है, तो ये एक अनसर्टेनिटी रहती है. टेक्नोलॉजिकल चेंज आ जाए जिसकी वजह से आप ओवरकम नहीं कर पाए और अपडेट अपग्रेड ना हो सके, तो एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं आता जिसकी वजह से आप जो है वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं. तो ये रिसोर्सेज हैं, सोर्सेज हैं स्ट्रेस के. अब नया कुछ आया, उसको सीखना है, उसको आपने अंडरस्टैंड करना है, नए सिस्टम के अकॉर्डिंगली अपने आप को ढालना है. ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर के अंदर आपका वर्क हो गया, रोल हो गया, आपको जो जॉब रोल दे दिया गया वो स्विच है या ओवरलोड हो गया. दो जॉब्स परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी जेडी एक्सटेंड कर दी. जेडी मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन. टास्क आपसे ज़्यादा डिमांड किया जा रहा है या मोर डिमांड किया जा रहा है. इंटरपर्सनल डिमांड्स होती हैं आईपीएस के, आपने लोगों के साथ कैसे भी. ये ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर है और इसके नतीजे में क्या स्ट्रेस होगा वो भी हम देखेंगे. थर्ड वन इज पर्सनल फैक्टर. अब ये आपका ना एनवायरमेंटल है ना ये ऑर्गेनाइजेशनल की तरफ से, ये आपका पर्सनल फैक्टर है कि आपको कोई फैमिली प्रॉब्लम है, फैमिली इश्यूज हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, या फिर कोई डिस्प्यूट्स हैं, कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, या पर्सनालिटी का कोई इशू है कि आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप जो है वो अवॉइडेंट हैं, विड्रॉल हैं, या और कोई और आपके साथ कुछ इश्यूज हैं. तो पर्सनालिटी फैक्टर्स जो हैं ये इफ़ेक्ट करते हैं. पर्सनल फैक्टर्स भी आपके इफेक्ट करते हैं स्ट्रेसफुल सिचुएशन में. तो अगर हम देखे जाएं तो तीन हमारे पास सोर्सेज हैं. एक तो एनवायरनमेंट है, आउटसाइड इन्फ्लुएंस है. ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स है कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती हैं. और थर्ड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कुछ पर्सनल फैक्टर्स होते हैं जो आपका स्ट्रेस की वजह बनते हैं. अब पर्सनल फैक्टर्स के साथ में एक और पॉइंट इसमें जो हमने एक चार्ट बनाया वो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस. कि हो सकता है सेम सिचुएशन और सेम वर्क हो, बट जो स्ट्रेस है किसी को फील हो किसी को ना हो, किसी की जो वेरिएशन है वो वेरी कर डिफरेंस हो सकती है. जैसे परसेप्शन. अब ये क्यों है? क्योंकि एवरीवन इज इंडिविजुअल, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. परसेप्शन की वजह से लोगों का जॉब एक्सपीरियंस ऐसा रहा, अब आईटी फील्ड से ताल्लुक नहीं रखते थे और फिर आईटी से रिलेटेड कुछ अपग्रेडेशन हो तो फिर आप गड़बड़ा जाएंगे. लेकिन अगर कोई आईटी फील्ड से और वो पहले से इसके लिए यूज टू होगा तो उसके लिए ऐसा करना कोई मुश्किल नहीं होगा. इस तरह और डिफरेंट फील्ड हैं. सोशल सपोर्ट होती है, कुछ लोगों के पास सोशल सपोर्ट है कि वो एक सर्कल में रहते हैं और वो उनको हेल्प करना हो, एक दूसरे की हेल्प से वो आगे बढ़ जाते हैं. कुछ लोग आइसोलेशन में रहते हैं, इंडिविजुअल रहते हैं, मैं खुद करूँगा, और फिर वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं. अच्छा, कहीं लोकस ऑफ कंट्रोल, ये जो लोकस कहते हैं एक्सपेन को ना, कि कहीं टाइट कंट्रोल होता है, कहीं लूज कंट्रोल होता है चीज़ों के ऊपर. और कुछ काबिलियत सेल्फ एफिशिएंसी मतलब यानी पोटेंशियल नहीं है आपके अंदर कि आप चीज़ों को अडॉप्ट कर सकें या चेंज को एक्सेप्ट कर सकें. या कभी कभार अंदर हॉस्टिलिटी होती है, नफरत है, हेट्रेड है, डिसलाइकनेस है. तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं. अब जो स्ट्रेस को, अब हम क्या देखने जा रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस. देखो स्ट्रेस का सबसे बड़ा जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो देखो, सबसे बड़ा तो फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स भी हैं, यानी साइकोलॉजिकल तो है लेकिन फिजिकली हमें क्या सिम्टम नज़र आते हैं? माइग्रेन पेन, हेडेच होना शुरू हो जाता है आपको, सर दर्द जिसे कह रहे हैं आप, बीपी आपका हाई रहने लग जाता है, डिजीज़, हार्ट हार्ट डिजीज़ बहुत सी पर्सनैलिटी है कि लोगों को हो जाती हैं. जब आप ज़्यादा स्ट्रेस से फाइट करेंगे और तो उसके नजर असरात जो है वो आपके जो है वो आपकी बॉडी पर नजर आते हैं. फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स, बीमार होने लग जाते हैं. सेकंड, साइकोलॉजिकल. अब साइकोलॉजिकल क्या होगा? एंजाइटी रहेगी आपको, मेंटल स्ट्रेस जिसे कहते हैं, आप डिप्रेशन का शिकार रहेंगे, सैडिस रहेंगे, और फ्रस्ट्रेशन हो जाती है जब आपकी चीज़ें फुलफिल नहीं होती हैं. और फिर जॉब से आप भागने लगते हैं कि इतना वर्कलोड है, इतना स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, अब मैं नहीं जी सकता, मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं ये जॉब छोड़ दूँगा.
इस तरह की सिचुएशन हर एक को आती है। आप ये ना समझें जो लोग जॉब कर रहे हैं कि उनको सिर्फ अपनी जॉब से मसला है, जितने लोग जॉब करते हैं उन सबको अपनी जॉब से मसला है। और उनको एक सिचुएशन आती है, ये फील होता है कि शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और यहाँ मेरे ही काम में सबसे ज़्यादा मसला है। और अगर किसी दूसरे को देखो तो वो तो बहुत ईजी, जैसे कोई लोग टीचर नहीं है तो कहेंगे टीचर तो बहुत आसान सी जॉब है, बहुत मतलब, लेकिन जो टीचर उनसे कुछ कहेंगे नहीं तो बहुत मुश्किल टास्क है, इतना कुछ करना पड़ता है। तो हर कोई अपना जो है वो अदर प्रोफेशन के लिए उसका एक परसेप्शन यही डेवलप होता है कि शायद देयर इज़ अ लेस ऑफ वर्क, और जिस काम में है उसमें वो शायद जो है वो बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। तो जॉब सेटिस्फेक्शन जो है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन है कि जहाँ काम है, वर्क है, तो वहाँ स्ट्रेस भी होता है, यू स्ट्रेस भी होता है, लेकिन पॉलर स्ट्रेस भी होता है। अच्छा, बिहेवियर की बात करें तो बिहेवियर के ऊपर क्या असर पड़ेगा, एक सबसे पहले तो अपने पास लिखे हैं वो फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है, गुस्सा वगैरह ज़्यादा आता है, प्रोडक्टिविटी आपकी या तो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। अगर कॉम्पिटिटिव होगा, पॉजिटिव स्ट्रेस होगा तो प्रोडक्टिविटी कभी बढ़ जाती है और कभी डिक्लाइन कर जाती है। इसी तरह एब्सेंटिज्म बढ़ जाएगा अगर आप भाग रहे होते हैं चीज़ों से, फाइट और फ्लाइट। अगर आपने पोजीशन ले ली फ्लाइट वाली तो फिर आपकी एब्सेंटिज्म ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, टर्नओवर आपका कम हो जाएगा। टर्नओवर से मतलब ये है कि जॉब टर्नओवर, जल्दी जल्दी जॉब स्विच कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर जॉब में आपको यही फील हो रहा है कि यहाँ बहुत ज़्यादा काम है, तो काम ज़्यादा है या आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं अकॉर्डिंग टू दैट। ये स्ट्रेस जो है वो आपका इस तरह का बिहेवियर बना देता है, ठीक है, जिसमें आप हमेशा अनसेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन में रहते हैं। तो इसी को अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये सारे पॉइंट्स मैंने पहले ही आपको एलोबरेट कर दिए और यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन दी है डिटेल में। एनवायरमेंटल फैक्टर है, ठीक है। और अच्छा, मैं अगर आपकी अटेंडेंस मार्क करता हूँ उसके बाद फिर जो है वो हम आगे कंटिन्यू करते हैं चीज़ों को। अच्छा जी।